Good morning, class. Class attendance. Roll number 1, 2, 3. 501. 503. 502 मैम। ठीक है। 458. 508 मैम। ठीक है जी। 9, 10, 11. 10 present मैम। 11 present मैम। ठीक है अच्छे। 16, 18, 19. 16 present मैम। 16 and 19. 21, 22, 23. 21 present मैम। ठीक है अच्छे। 25, 27, 31. 27 present मैम। 32, 33, 35. 532 present मैम। 32 present. 35 present। 33 भी है, 35 भी है। 36, 38, 40. 540 present। 40 present है। 540 present मैम। 36 भी present है। 37, 38. 38 present है। 37 है। 37 37 भी है। Then 42, 45, 46. 540 हो गया मैम। हाँ हो गए बच्चे। 42, 45, 46, 47, 48, 49. 49 present मैम। 50, 51, 52. 47 present मैम।
ठीक है Ma'am, 50 present. ठीक है ओके 51 52 15 01 2 3 1501 present, ma'am. ठीक है मैम 522 प्रेजेंट है 22 है ओके 1503 ठीक है 2 है 4 5 7 Ma'am, 5 present. ठीक है Ma'am, 4 भी present. 7 4 भी प्रेजेंट है ओके 7 भी प्रेजेंट है 14 18 19 Ma'am, 14. ठीक है 20 21 22 मैं 1520 ठीक है जी 5 12 लास्ट अंश फिर मानने सुन लो एक बार अटेंडेंस रोल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट रोल नंबर 8 प्रेजेंट देन 10 11 16 then 19 21 22 27 32 33 35 36 38 40 47 49 50 15 01 3 4 5 7 15 14 15 20 और 537 these are the present 37 37 present 509 ओके और कोई रहता है बस ओके बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने एरेज किया था एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट द चैप्टर ऑफ एरेज विद द लास्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे सिर्फ ये लोकेशन का फॉर्मूला रह गया था बाकी सारा हम लोगों ने क्लियर कर दिया था तो लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू पीपल दैट the 2-dimensional array can be stored in 2 different ways. The 2 different ways can be either it can be stored in a row wise order or it can be stored in a column wise order. Row wise and it can be stored column wise. ठीक है रो वाइज मींस 1 बाय 1 रो आपने स्टोर करनी शुरू करनी पहली रो स्टोर करनी देन सेकंड देन यू हैव टू गो फॉर द थर्ड रो एंड सेम इज फॉर द कॉलम फॉर कॉलम वाइज स्टोरेज ऑफ 2 डायमेंशनल array you have to store first column then you have to go for second column then you have to go for third column and so on. Now to calculate the location of any element a of ij, a of ij is the ijth element of array of 2-dimensional array that can be calculated using the formula same जो आपका 1 dimension में था. You need to calculate the base address, take the base address into concern, then you need to add it with the storage type of array. अगर array आपकी integer type है तो w can be 2 bytes. अगर character type array है तो w is 1 byte. अगर float है तो 4. w is the width of storage of array, storage capacity. कितनी memories use कर रहा है. Then the next is you need to take I minus m plus j minus n, where I and j represents the ith and jth location. जो भी इंडेक्स है जैसे 2 3 का आपने कैलकुलेट करना है, you need to calculate the index of a of 2 3, a of 2 3. Then here I is represented with 2 and j is represented with 3. And small m and small n is the lower bound of 2 dimensional. ठीक है लोअर डायमेंशनल 0 0 एलिमेंट पे भी हो सकता था आपका, लोअर डायमेंशनल आपका 1 1 पे भी हो सकता है. जैसे एरे स्टोर करते हैं ना 0 to n-1 इंडेक्स, वैसे 2 डायमेंशनल पे आप 0 0 से स्टार्ट करके m-1 to n-1. अगर आपकी एरे है एक ऑफ द ऑर्डर m by n, a 2-dimensional array A is of order m by n, then this m by n can take range from 0 to m-1 and 0 to n-1. यानी कि the very first element of the array is stored at 0 index 0 0 and the last element is stored at m-1 to n-1 index.
or you can say the first element is stored at 1 index and correspondingly the last element will be at ठीक है क्लास। अगर 0 0 से स्टार्ट किया फर्स्ट एलिमेंट की स्टोरेज फॉर m by n मैट्रिक्स, देन द लास्ट इंडेक्स वुड बी द लास्ट एलिमेंट वुड बी स्टोर्ड एट m-1 एंड n-1। अगर आपकी स्टार्टिंग है 1 1 से तो लास्ट होगा mn पे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग mn इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, द लोअर बाउंड ऑफ द 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, उसके साथ ये खत्म होगा। अब अगर हम रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, then I need to take into account this row. This is the calculation of row index. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? With capital N, where capital N is the upper limit of 2 dimensional array. If this is of order m by n, तो mn क्या है? अपर बाउंड उसकी। ठीक है, तो उसकी हमने क्या करना है, उसको करंट इंडेक्स एक्स इंडेक्स को या रो इंडेक्स को उसके लोअर बाउंड से माइनस करके उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम के हायर इंडेक्स से। कितने कॉलम्स हैं? कॉलम्स हैं कितने? अगर 2 by 3 की मैट्रिक्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, गॉट इट। ऐसे ही कॉलम वाइज में सेम हमने क्या करना है, इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देना है। In order to calculate the location of A of ijth element, हमने क्या करना है, उसमें बेस एड्रेस लेके उसमें क्या करना है, उसके साइज ऑफ एरे दैट कैन बी 1 फॉर कैरेक्टर, 2 फॉर इंटीजर, 4 फॉर फ्लोट। ठीक है, हमने सेम वही कैलकुलेट करना है i माइनस एम एंड j माइनस एन। जिसका भी इंडेक्स जो जिसकी लोकेशन फाइंड कर रहे हो, 2 by 3 की लोकेशन फाइंड कर रहे हो तो 2 - 0 3 - 0, अगर लोअर बाउंड 0 0 है। लेकिन अब क्योंकि हमने कॉलम वाइज करना है कैलकुलेट, तो हमने कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है किससे? उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज से। यहां से ये n हट जाएगा। कॉलम के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है? नंबर ऑफ रोज को। बस ये फर्क है। उधर रो के साथ, क्योंकि रो वाइज थी स्टोरेज, तो रो को मल्टीप्लाई करवाया था कॉलम्स के साथ। यहाँ पे कॉलम वाइज स्टोरेज है तो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है हमने रोज के साथ। गॉट इट? ठीक है, आपकी अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो गो फॉर पेज नंबर 119। वहां पे क्वेश्चन दिया, एन एरे ऑफ 3 by 4 साइज। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स भी आपको दिए हैं। बेस एड्रेस आप अभी कोई भी अज्यूम कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में एज सच कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, you can take any base address. Let it be the base address you will be taking is, take the base address as 1010. अगर बेस एड्रेस ये है तो you need to calculate the location of A of 2, 3. This is your homework. ठीक है, अगर नहीं होगा I'll be discussing it by tomorrow. Use these 2 formulas. ठीक है, you need to calculate the address of this for row wise as well as for column wise. बुक में उसने रो वाइज पूछा है। द क्वेश्चन इज इफ द एरे इज स्टोर्ड इन रो वाइज ऑर्डर, देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ A of 2 3। तुम उसको कॉलम वाइज में भी कर सकते हो। ठीक है, कॉलम वाइज होगा तो यू कैन चेक कि देयर इज अ डिफरेंस इन द स्टोरेज वैल्यूज फॉर टेकिंग आइदर रो वाइज स्टोरेज और कॉलम वाइज स्टोरेज। So this difference you need to take into concern. Is that clear, class? Yes, ma'am. Fine. Yes. अब एरेज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? Shall I start with the next chapter, stacks? एरे चैप्टर साइड बाय साइड पढ़ो, अगर कोई दिक्कत आती है मुझे पूछ लेना। एरे इसके साथ खत्म हो गया।
अब आपको एरेज में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट मी क्लियर यू वन टाइम, देन आई विल बी स्टार्टिंग द स्टैक। एरे की डेफिनेशन एंड टाइप्स, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, n डायमेंशनल एरे को डिस्कस करोगे, ठीक है। देन आपको जब क्वेश्चन आता है वो आपसे इंसर्शन का क्वेश्चन पूछता है पेपर्स में, इंसर्शन एट kth पोजीशन। बिगिनिंग का, लास्ट का नहीं पूछता, इंसर्शन या डिलीशन में पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन kth लोकेशन पे पूछेगा वो ये चीजें। देन हमने किया है लीनियर एंड बाइनरी सर्च, सर्चिंग ऑपरेशन में किया था, उसमें बाइनरी सर्च के बहुत ज्यादा चांसेस है, लीनियर सर्च आज तक कभी नहीं पूछी गई। देन हमने की सॉर्टिंग, सॉर्टिंग्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्टिंग है और इजी सॉर्टिंग्स है। बबल एंड सिलेक्शन दोनों पूछी जाती हैं पेपर में रैंडमली। इसके बाद जो सॉर्टिंग्स रह जाएंगी आपकी, क्विक सॉर्ट रह जाएगी, इंसर्शन सॉर्ट रह जाएगी, ठीक है, जिनके ऊपर कम हमारा मतलब होता है कि कम पूछी जाती है पेपर्स में क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट दीज आर द बेसिक सॉर्टिंग्स। सिलेक्शन, सॉर्टिंग एंड बबल बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। बिसाइड्स दिस तुम्हें पेपर में एक पेट क्वेश्चन आता है, मेमोरी एलोकेशन, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का आ सकता है। स्टैक का मेमोरी एलोकेशन आ सकता है, क्यू का आ सकता है, लिंक लिस्ट का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन। आपको 1D का भी पूछा जा सकता है, 1 डायमेंशनल एरे, या आपको 2 डायमेंशनल एरे का भी, जो आपने रो वाइज कॉलम वाइज मेंशन किया है। उसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा और कैलकुलेट करके कोई भी एक रैंडमली एलिमेंट ले लो, उसका लोकेशन फाइंड आउट करके बतानी पड़ेगी, दिस इज द लोकेशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल के ऊपर भी सेम वही आता है। 2 डायमेंशनल एरे क्या है, उसकी बारे में एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। बस ये सारी चीजें आपको एरेज में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इसको पढ़ लो, फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत है, लीनियर सर्च चाहे छोड़ ही देना, नहीं पूछी जाती, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लीनियर सर्च इज एसेंशियल। नेक्स्ट हम करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे स्टैक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक? लेट मी चेक कि कितना आपको याद है। स्टैक क्या था? स्टैक क्या बच्चे? It is a linear data structure in which insertion and deletion has to be performed at only one end of array. We can say it is a special form of array. Stack is a special type of array. स्पेशल क्यों है? क्योंकि काम इसके सारे एरे वाले ही हैं, लेकिन एरे के ऊपर कुछ स्पेशल काम किए हैं, एरे को रिस्ट्रिक्ट किया, स्पेशल कह लो या रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एरे। जो एरे की डेफिनेशन थी वो सारी इस पे होल्ड करती है। एरे की डेफिनेशन क्या थी? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच the elements are stored in consecutive memory location. The same definition holds for stack. It is a linear data structure in which the stack elements are stored in contiguous or consecutive memory locations. But the restriction lies that the insertion and the deletion of elements has to be performed at only one end of the array. This is called, this end is termed as a special name as top of the stack. इसको टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं, टॉप बोलते हैं इसको। टॉप पैरामीटर से ये डिफाइन होता है कि जब इंसर्शन होनी है तो हम कहेंगे टॉप कहाँ है, उसके ऊपर इंसर्शन कर दो। जब डिलीशन होनी है तो हम कहेंगे टॉप कहाँ है, उसके वहां से डिलीशन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल बी टेकिंग अ केस ऑफ शटल कॉक्स, जो आपकी बैडमिंटन की शटल कॉक्स होती है, तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट शटलकॉक इज प्लेस्ड एट द लोअर एंड,
दिस इज द स्टैक का लोअर एंड। जैसे आपका बॉक्स होता है ना, स्टैक का बॉक्स इस सिलेंड्रिकल शेप पे होता है, दिस इज द लोअर एंड, दिस इज द नेक्स्ट एरिया, दिस इज द नेक्स्ट एरिया, मींस एरे की काइंड है, ठीक है। दिस इज द लास्ट एरिया, शटल कॉक का जितना साइज होगा बॉक्स का सिलेंडर का। यहाँ पे फर्स्ट शटल कॉक प्लेस की, यहाँ पे सेकंड प्लेस की, यहाँ पे थर्ड प्लेस की, यहाँ पे फोर्थ प्लेस की, यहाँ पे फिफ्थ प्लेस की, यहाँ पे सिक्स्थ। अब जब 6 शटल कॉक प्लेस करूंगी, 6 के बाद और शटल कॉक्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि बॉक्स का साइज खत्म हो चुका है। आई हैव रीच्ड द एंड ऑफ द बॉक्स। तो दिस कीप्स द बाउंड चेक ऑफ एरे। हमने कहा था एरे में भी ड्रॉबैक है, देयर इज नो बाउंड चेक ऑफ एरे। तो दिस कंडीशन आल्सो कीप्स द बाउंड चेक। हम क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आई विल बी टेकिंग, सबसे पहले ये मेरा शटल कॉक का बॉक्स है। काम होता कैसे स्टैक का, ये शटल कॉक का बॉक्स है, ठीक है। इनिशियली बॉक्स एम्प्टी है, इनिशियली डिब्बा खाली होता है। हाँ जी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब इस खाली डब्बे को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? बाय द टॉप वेरिएबल। अब टॉप क्या था? टॉप उस पॉइंटर को बोल रहे हैं जो कि डिफाइन करे टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। टॉप डिफाइंस द टॉप मोस्ट एलिमेंट, एलिमेंट जहां पे करंटली टॉप मोस्ट पोजीशन पे पड़ा है, लास्ट एलिमेंट जो पड़ा है। अब फॉर द टाइम बिंग तो यहाँ पे स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, टॉप कहाँ है? टॉप तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, कोई एलिमेंट ही नहीं है। किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे टॉप? किसी को नहीं। तो टॉप इज लेस देन 0, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट वैलिड इंडेक्स ऑफ एरे। हम कहते हैं ना एरे स्टार्ट होती है, फर्स्ट वैलिड इंडेक्स जो एरे को असाइन होता है दैट इज 0। तो स्टैक के केस में भी 0 ही होगा, ठीक है। तो टॉप लेस देन 0 मींस टॉप इज इक्वल टू, या कंपैरिजन कर सकते हैं -1 से। इफ टॉप इज इक्वल टू -1 तो हम कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी। जैसे ही मान लो मेरे पास पहली शटल कॉक आती है, अब पहली शटल कॉक के लिए क्या करना है, मैंने 0 इंडेक्स को ऑक्यूपाई करना है और वहां पे फर्स्ट शटल कॉक को प्लेस कर देना है। तो अब मेरा टॉप कहाँ गया? यहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक, दिस इज द टॉप। When I need to add more shuttles to the box, तो उसने क्या करना है, नेक्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है, दैट इज 1 इंडेक्स। तो यहाँ पे सेकंड शटल कॉक प्लेस होगी। तो अब टॉप कहाँ मूव कर गया? यहाँ पे। एवरी टाइम द टॉप विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। ऐसे ही मैंने थर्ड शटल कॉक प्लेस की, तो टॉप आई विल बी मूविंग ओवर हियर, ठीक है। और ये क्या है, इंडेक्स सेकंड से रेफर हो रहा है, थर्ड शटल कॉक। नेक्स्ट मैंने फोर्थ शटल कॉक डाली, तो आई विल बी मूविंग द टॉप अगेन टू 1 पोजीशन अप, नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। कंट्रोल सिर्फ टॉप ने रखना है, दिस इज द टॉप, ठीक है। दिस इज द थर्ड इंडेक्स ऑफ स्टैक। नेक्स्ट जब नेक्स्ट शटल कॉक होगी फिर टॉप ऊपर जाएगा, ठीक है। अब टॉप यहाँ से ये सारे हटी जा रहे हैं, टॉप ये कैंसिल आउट कर रहे हो। टॉप ने डिफाइन करी लास्ट पोजीशन ऑफ स्टैक, यहाँ पे 5th शटल कॉक पड़ी है और ये इंडेक्स क्या है स्टैक का 4th इंडेक्स से रेफर हो गई एरे। एरे के 4th इंडेक्स पे 5th शटल कॉक पड़ी है हमारी, और वो टॉप वेरिएबल से रेफर हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं शटल कॉक डालने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ स्टैक, जैसे एरे का साइज होता है स्टैक का भी साइज होता है, दैट इज नॉट अलाउड। हम कहते हैं ना कि एक गिलास में पानी कितना भरता है, जितना गिलास का साइज है, उसके बाद पानी भरने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, एक गिलास पूरा पानी से भर दिया, उसके बाद क्या होगा अगर और पानी भरोगे तो? बाहर आ जाएगा ना। यस, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज ओवरफ्लो। यानी कि पहली बात तो ये है कि इस पॉइंट को द लास्ट लिमिट ऑफ द स्टैक इज टर्म्ड एज मैक्स स्टैक, MAX स्टैक। दिस इज अ स्पेशल वेरिएबल यूज्ड टू होल्ड द मैक्सिमम वैल्यू जो टॉप रीच कर सकता है। अगर टॉप, हम लिखते हैं कंडीशन, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक, this condition defines that the stack is full. So if this condition is reached, we can say no more insertions can take place. ये सारा मैं आपको इंसर्शन और डिलीशन कर जाऊंगी इसी में ही,
no more insertions can take place, या you can simply write stack overflow. अब stack overflow हो गई, क्योंकि अब फिर से तुम और कुछ डालने की कोशिश करोगे, बाहर ही आएगा, गिरेगा। ठीक है, द सेम कंडीशन ये होती है इंसर्शन के टाइम पे चेक। जब इंसर्शन करनी है, वी ऑलवेज चेक फॉर द कंडीशन कि टॉप कहीं मैक्स टैग को रीच तो नहीं कर गया। अगर टॉप मैक्स टैग, ये देखो ना, इस यहाँ पे आके टॉप और मैक्स टैग दोनों एक कंडीशन को, एक इंडेक्स को ही पिन पॉइंट कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं इसके बाद अगर और इंसर्शन आप करने की यूजर कोशिश करता है तो सिंपली उसको मैसेज दे दो स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक भर चुकी है, अब वो अलाउड नहीं कर रहा तुम्हारे इंसर्शंस को, जगह उसके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आता है, डिलीशन। अब क्या होगा, मान लो मैं कहती हूँ एक शटलकॉक मैंने निकाल ली। अब शटलकॉक्स जब जा रही थी तो क्या जा रही थी, ऊपर से इंसर्ट हो रही थी। ये टॉप जब यहाँ पे था फर्स्ट इंडेक्स पे तो ऊपर इंसर्ट हुई, यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे आई, टॉप यहाँ पे आ गया। फिर स्टैक ऊपर से आई यहाँ पे तो टॉप यहाँ पे आ गया, फिर स्टैक ऊपर से आई, फिर यहाँ पे आ गया, फिर स्टैक ऊपर से आई, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपका शटलकॉक्स का बॉक्स भर जाता है, जब आपने शटल्स को रिमूव करना है तो क्या करोगे, विच शटल विल कम आउट फर्स्ट? Fifth one. Yes, the last one will come out first. That's why we say the stack follows the LIFO principle, last in first out. जो लास्ट में इनपुट हुई है वो फर्स्ट में आउटपुट होगी, फर्स्ट आउटपुट देगी वो। यानी कि फिफ्थ वन पहले, अगर मैं मान लो पहली शटलकॉक मुझे चाहिए, पहली शटलकॉक ऐसे ही नहीं निकलेगी। अब ये मत कहना कि आपकी शटलकॉक्स के दोनों साइड ओपन होते हैं, हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि शटलकॉक्स का बॉक्स जो है वन साइड ओपन है सिर्फ, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक साइड पे नहीं है। तो आपने ये असम्पशन लेके चलनी है कि ये एक साइड से बंद है बॉक्स, तो बॉक्स जब एक साइड से बंद है, एक साइड से ही ओपन है, तो वहां पे इंसर्शन हो रही है तो ऊपर ऊपर हो रही है, 1 के बाद 2 की हुई है, 2 के बाद 3 की इंसर्शन हुई, 3 के बाद 4 की, 4 के बाद 5 की हुई। जब डिलीशन होगी तो क्या होगा, पहले 5 जाएगा, जब 5 निकल गया टॉप कहाँ आ गया, अब टॉप यहाँ पे आ गया 4 पे, फिर और निकालने की कोशिश करूंगी 4 बाहर आ जाएगी, फिर टॉप कहाँ चला गया 3 पे, क्योंकि 4 बाहर जा चुकी ना, टॉप ने पॉइंट करना लास्ट एलिमेंट जो स्टैक में अभी पड़ा है, अब 3 को पॉइंट कर रहा है टॉप। जब 3 को भी बाहर निकाल दिया मैंने तो टॉप कहाँ चला गया 2 पे, जब 2 को भी बाहर निकाला टॉप चला गया 0 पे और 1 पे, सॉरी, जब 1 को भी मैंने फर्स्ट शटलकॉक भी बाहर निकाल ली, अब टॉप कहाँ चला गया, क्योंकि अब कोई वैल्यू रही नहीं तो टॉप बन गया लेस देन 0, कि फर्स्ट इंडेक्स से भी कम हो चुका है, टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। तो दिस कंडीशन इज यूज्ड टू चेक फॉर डिलीशन। इफ टॉप is less than 0, we say the stack underflow takes place. Stack underflow का मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं और तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, एक शटल बॉक्स में शटल्स पड़ी ही नहीं और तुम still trying to take out shuttle from that box. Underflow. Deletion process के टाइम पे this condition is checked. When you are trying to perform the deletion operation on stack, you need to check every time whether there is any element or not. क्योंकि जब element ही नहीं होगा stack में तो no deletion can take place. We simply say stack underflow. Stack underflow is that condition where there are no elements and still you are trying to perform the deletion operation. समझ लग गई? Stack overflow ਦਾ मतलब किसी की element भर चुकी है लेकिन ਤੁਸੀਂ इंसर्शन ऑपरेशन करने की कोशिश फिर कर रहे हो। अंडरफ्लो की है ਜਦੋਂ स्टैक च एलिमेंट है ही नहीं ਤੇ स्टिल ਤੁਸੀਂ डिलीशन ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हो। Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करोगे आप, यू विल टेक अ स्टैक, ठीक है, let the stack is of 5 size. You have already reserved a stack of 5 elements. Then the 5 elements can be stored at index 0, 1, 2, 3 and 4. ये 5 इंडेक्स ही होंगे आपके पास, ठीक है। अब the insertion and the deletion operation of the stacks are termed as, insertion को स्पेशल नाम दिया गया यहाँ पे push,
पुश का मतलब धक्का मारना, उसके अंदर इंसर्ट कर दो। डिलीशन ऑपरेशन को, जो एरेज में आप डिलीशन बोलते हो, टू रिमूव एन एलिमेंट, यहाँ पे उसको स्पेशल नेम दिया गया, दैट इज पॉप। पॉप आउट, जैसे हम कहते हैं ना पॉप, जो जोकर सा बाहर निकलता है, आपका एक डिब्बा खोलते पॉप आउट, या काइंड ऑफ जो बर्थडे पार्टीज में पॉप आउट्स पॉपर्स होते हैं, वैसे कोई चीज बाहर निकलनी, डिलीशन, ठीक है, उसके साथ कोरिलेट करना। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी स्टार्टिंग विद द, इनिशियली मेरी स्टैक में क्या है, अभी स्टैक मेरी एम्प्टी है, तो कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है अभी फॉर द टाइम बी? अगर अभी कोई एलिमेंट नहीं स्टैक, अंडरफ्लो, हाँ जी, अंडरफ्लो। नहीं, अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? अंडरफ्लो तो तब ना, कि मैं डिलीशन करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो चेक करेगा कि डिलीशन हो सकती है कि नहीं। For the time being, the stack is identified using two variable. One is max stack, that is over here acting as 4 index. Max stack की वैल्यू क्या है? 4. 4 के बियॉन्ड इंसर्शन नहीं हो सकती। स्टैक ऑफ 4 इज लास्ट वैलिड। स्टैक 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, स्टैक 4 इज द लास्ट, मींस आई नीड टू चेक फॉर 4 इंडेक्स, कि जब वो 4 इंडेक्स को रीच कर जाता है तो उसके बाद वो नहीं ऐड कर सकता। तो मैक्स स्टैक को पहले मैंने डिफाइन कर दिया 4। द सेकंड थिंग आई एम टेकिंग इनटू कंसर्न इज टॉप, क्योंकि इनिशियली जब भी एरे भी लेते हो, कोई भी लेते हो डेटा स्ट्रक्चर, इनिशियली वो सारे एम्प्टी होते हैं, तो टॉप हियर इज राइट नाउ लेस देन 0, या टॉप इज इक्वल टू -1 राइट नाउ एक्टिंग। Now I'll be starting with the stack. Let it be, मैंने सबसे पहले किया पुश परफॉर्म, पुश ऑफ 3। पुश ऑफ 3 ने क्या किया, ये 3 वैल्यू को यहाँ पे पुश करवा दिया। जैसे 3 वैल्यू पुश हुई, टॉप क्या बन गया? टॉप क्या बन गया? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप अब 0 इंडेक्स को रेफर करेगा। हाँ कि नहीं? यस। ठीक है, मतलब तुमने जनरल सी एक एग्जांपल लेके बतानी है पुश पॉप ऑपरेशन कैसे वर्क करे, मेमोरीज कैसे ले रहे हैं वो, कहाँ पे टॉप मूव कर रहा है। पुश करो 10 को, अब टॉप कहाँ जाएगा? पहले टॉप जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खाली लोकेशन पे ही जाके इंसर्शन करेगा, पहले खाली लोकेशन पे तो पहुंचे वो, ये खाली लोकेशन पे पहुंच गया, यहाँ पे उसने 10 इंसर्ट कर दिया। फिर पुश कर दो 20, टॉप पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे 20 हो गया। ऐसे ही पुश करते रहो, फिर पुश कर दो 30 कर दो नेक्स्ट। चलो कर देते हैं, जरूरी नहीं सारे करने, मैं वैसे ही आपको करके बता रही हूँ, 2-3 करके 2 पॉप कर देना। आपको एक रैंडम सी एग्जांपल लेनी है, बुक्स में पढ़ोगे आपको समझ लग जाएगा कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। पुश 30 करना है तो 30 यहाँ पे आ गया, पुश 40 करो नेक्स्ट, टॉप फिर मूव कर गया कहाँ पे? यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया? 40। अब मैक्स टैग क्या था? मैक्स टैग ऑलरेडी 4 इंडेक्स था, दिस इज द मैक्स टैग, मैंने पहले इनिशियली उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब पुश करो 50। जब 50 वैल्यू को पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या कहेगा? प्रॉम्प्ट करेगा मैसेज ओवरफ्लो। ठीक है, यहां तक करके फिर क्या करो, उसे कहो कि अब इसके बाद ऑपरेशन की एग्जीक्यूट कर, पॉप कर। पॉप किसको करेगा? जो टॉप पे वैल्यू होगी वही पॉप होगी ऑटोमेटिकली। 40 है, 40 विल कम आउट। जैसे 40 बार आएगा, टॉप कहाँ चला जाएगा? एक लेवल नीचे, यहाँ पे टॉप आ गया। फिर उसे कहेंगे पॉप और कर, डिलीशन करने की कोशिश कर। जब और पॉप करेगा ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट 30 है तो 30 ने बार आना है। यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं गेस कर सकते, जो लास्ट में पड़ा होगा इंसर्शन के टाइम पे हम एलिमेंट बताएंगे उसको, पॉप के पुश के वक्त, डिलीशन के वक्त जो लास्ट में पड़ा होगा ऑटोमेटिकली वो बार आएगा। 30 बार आ गया, अब टॉप चला गया यहाँ पे, क्योंकि 30 भी रिमूव हो चुका है यहाँ से, 40 रिमूव हुआ, 30 भी रिमूव हुआ। फिर पॉप किया, 20 बाहर आया,
ये भी डिलीट हो गया तो टॉप चला गया 10 पे, फिर पॉप किया 10 बाहर आ गया, 10 के बाद फिर पॉप किया, पहले पॉप आया 3 पे, फिर पॉप किया तो 3 भी बाहर आ गया। जैसे 3 बाहर आया फिर पॉप करने की कोशिश करते हैं तो वो लिख देगा अंडरफ्लो कि इसके बियॉन्ड अब आपकी डिलीशंस पॉसिबल नहीं। इज दैट क्लियर विद यू पीपल? कुछ हद तक समझ लगा क्या हुआ आज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही दो ऑपरेशंस कल हम एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर देंगे, पुश एंड पॉप। जो हम इंसर्शन ऑफ एरे करते थे, यहाँ पे हम करेंगे पुश ऑपरेशन ऑफ स्टैक, सेकंड करेंगे पॉप ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो आपने क्या करना है, बाय टुडे यू नीड टू रीड आउट चैप्टर नंबर 5 फॉर पेज नंबर 144, 145, 146, 47, 45 to 47 पेजेस रीड करने हैं। इट विल गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू स्टैक्स, तो आपको समझ लगेगा पुश, पॉप, मैक्स स्टैक या टॉप हैं क्या, एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो कल इसको रिपीट करके देन आई विल बी गोइंग टू द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। इसके साथ स्टैक खत्म हो जाएगी, दैट्स इट, यही करना हमने स्टैक में बस। मैम 504 एंड 505 की प्रेजेंट लगा देना मैम, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। कोई बात नहीं, लगा दे। और कोई रहता है इसके अटेंडेंस में? चलो मैं 2 मिनट में एक बार पुश पॉप भी करवाती हूँ ताकि आपको फिर भी क्लियर हो जाए। लेट इट बी, आई विल बी स्टार्टिंग विद पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे एरे होती थी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टैक। स्टैक की आइडेंटिटी, एरे की आइडेंटिटी क्या होती थी, विद n नंबर ऑफ एलिमेंट। स्टैक की आइडेंटिटी किससे होगी, टॉप से एंड मैक्स स्टैक से। यही दो वेरिएबल है, टॉप करंट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट को पिन पॉइंट करता है, मैक्स स्टैक लास्ट लिमिट को पिन पॉइंट करता है। अब क्योंकि पुश ऑपरेशन में लिख रही हूँ, पुश ऑपरेशन का मतलब है इंसर्शन, तो इंसर्शन में डेटा वेरिएबल मुझे चाहिए, किस वैल्यू को इंसर्ट करना है। डेटा इनपुट करवाते हैं ना, बताओ कौन सा एलिमेंट है जिसको इंसर्ट करना है, तो दैट इज टर्म्ड एज डेटा। ये एलिमेंट्स हो गए। तो स्टेप 1 वुड बी, सबसे पहले पुश ऑपरेशन है तो मैंने चेक करना है कि जगह है, शटल कॉक डालने की कोशिश कर रही हूँ क्या बॉक्स में एनफ स्पेस है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स स्टैक। अगर टॉप मैक्स स्टैक पे पहुंच चुका है, सिंपली क्या करे, डिस्प्ले स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट, खत्म कर दो यही काम। डिस्प्ले करके कि स्टैक भर चुकी है, भरी हुई है, तुम गलत कर रहे हो, पुश करने की कोशिश कर रहे हो, स्टैक भरी हुई है, नहीं हो सकता, एग्जिट मार जाओ, ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है। एग्जिट लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा उसी वक्त, उसकी बाउंड रीच कर चुका है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, स्टेप 2 पे पहुंचता, अगर ये कंडीशन फेल होती है, इसका मतलब उसमें स्टैक में जगह है। अगर स्टैक में जगह है तो पुश ऑपरेशन होना ही होना है। तो पुश ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने खाली जगह को पिन पॉइंट करना है। अब टॉप क्या है, टॉप पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को, तो सबसे पहले मैंने टॉप को करना है सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। टॉप को पहले खाली जगह पे लेके जाना है। जैसे एरे का हम कहते थे ना, इंसर्शन एट एंड 0 to n-1 तक तो एरे पड़ी है, अब n इंडेक्स पे एरे डाल दो। तो टॉप पे तो एलिमेंट है लेकिन टॉप प्लस 1 पे नहीं है, तो मैंने टॉप को रीसेट कर दिया टॉप प्लस 1, यहाँ पे एलिमेंट डाल दो भाई। सिंपली स्टेप 3 में मैं क्या करूंगी, सेट डेटा। डेटा को कहाँ डालूंगी, डेटा वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, डेटा को मूव करवाना मैंने स्टैक के टॉप इंडेक्स पे। इंसर्शन होगी, बस इंसर्शन हो गई। तो क्या करना है, स्टेप 4 में एंड खत्म। इंसर्शन ही तो करनी थी मैंने, बस ये काम है पुश का। सबसे पहले चेक किया कि वो अपनी हायर बाउंड को रीच तो नहीं कर गया, अगर रीच कर गया लिख दो सिंपली मैसेज स्टैक ओवरफ्लो और एग्जिट। ये मैसेज है, प्रिंटएफ में जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। अगर नहीं ऐसा हुआ, अपनी